Hello student, this is Rohan. Welcome back to our YouTube channel Smile Education Point. Students, in previous class we have learned about the properties of rational numbers. But in today's class we learned the standard form of rational numbers. So students, let's start the standard form of rational number, that is the topic of this part 6 of the video. If you have not watched the remaining part, then go to our YouTube channel and watch the remaining part. Then you will understand serially. So student, now we'll study the standard form of rational number. So what is the standard form of rational number? Before knowing the topic, before knowing the term, we should know about what a standard form is. So standard form means simplest form. When we say talk in simple English, हम बोलते हैं ना अपने फ्रेंड को, अरे ज्यादा चबर चबर मत कर, कम इंग्लिश बोला कर, तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म यानी सिंपलीस्ट फॉर्म। ये साधारण भाषा में, इन सिंपल वर्ड्स, इफ वी से स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट मीन्स वी मीन्स दैट इन सिंपलीस्ट फॉर्म। Actually, we means in generally we means it is in simple form. But when we talk this topic in mathematical connotation, in mathematical terminology, then we, by saying standard form, it represent it signifies something that is related to mathematics. As we are studying the subject of mathematics, as the discipline of mathematics, so in mathematics standard form means simplest form. In simple words, if we understand in simple words, it means simplest form. Simplest form, that is mathematical terminology that no one discuss about it, because all the teachers only want to finish the syllabus. But in this YouTube channel, we will understand the basics from zero to hero. स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आप बच्चे मेरे बात समझ पा रहे हैं? हम इस YouTube चैनल में जीरो से लेकर इन्फानाइट तक जाएंगे, यानी जिसका स्टैंडर्ड जीरो है उसको हम हीरो बना के रहेंगे, छोटे छोटे डाउट क्लियर करेंगे। तो बच्चों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिसके लिए कि आप सभी को हर डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? ना, a number is said to be in standard form. A number is said to be in standard form if q is positive and the integers p and q have their highest common factor, that is 1. So what is the definition of standard form? Now a rational number is said to be standard form. A rational number, I'm writing it in simple words or in shortcut. तो बच्चों, आप लोगों को मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छे तरह से सुनना है, ठीक है? आप अगर आप सुन पाओगे तो आप आपके भाषा में भी लिख पाओगे, आपके वर्ड्स में भी लिख पाओगे, जिस कारण कि आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको रटना नहीं पड़े, ठीक है? हमें टॉपिक को, मैथमेटिक्स को रटना नहीं है, उसे समझना है, समझ के अपने वर्ड्स में उसका जो भी है डेफिनेशन हो या वो अपने तरीके से करना चाहिए। सारी चीज दुनिया में जो कोई भी चीज है, हम सभी को उसे अपने तरीके से करना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। सो अ रैशनल नंबर, एन फॉर नंबर, कंफ्यूज मत होना, अ रैशनल नंबर
P by Q is said to be is said to be in rational is said to be in stand is said to be in standard form. S for standard, F for form. A rational number P by Q is said to be in rational number. A rational number is said to be a rational number P by Q is said to be in standard form if Q is a positive integer. Here Q is a positive integer. सब क्या लगा रहे हैं? Q is a positive integer. Q is a positive. Q is a positive integer. So students, the standard form of rational number state that a rational number, that is P by Q, we have studied in earlier class or in previous not previous earlier class, that is part 2 or part 3, part 1 or part 2, कि rational number is a number that can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So from that मैं सब बच्चों को हर वक्त बोलता हूँ, जो बेसिक नहीं सीखा वो आगे जाकर कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, उसी तरह हमको पहले रैशनल नंबर क्या है, अगर हम वो जान लेंगे तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे पार्ट 1, 2, 3, 5 को देखो, उसके बाद इस वीडियो को आना पार्ट, दैट इज पार्ट 6। ठीक है बच्चों, तो रैशनल नंबर P by Q सेट टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म, सेट टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म if Q is a positive integer. What is the reason or what शर्त क्या है ना? Q is a positive integer and P and Q have their and और एक शर्त है, and P and Q have the highest common factor, HCF, highest common factor, that is 1. So are you getting my point, students? So standard form of rational number state that a rational number that is P by Q. Rational number आप तो जानते हैं सभी, rational number क्या होता है? P by Q. So rational number is said to be by a rational number P by Q is said to be a rational said to be in standard form if Q is a positive integer and P and Q have a highest common factor, that is 1. Are you getting my point, student? A rational number P by Q is said to be in standard form. एक rational number जो कि P by Q है, उसे हम उसे तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है बोल सकते हैं जब Q एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और P and Q का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF जो है वो 1 हो रहा होगा, तभी हम उस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में है कह पाएंगे। समझियो ना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? A rational number is said to be in standard form, और rational number हम ऐसे भी कह सकते हैं, rational number P by Q is said to be in standard form if उसमें शर्त है, if Q is a positive integer, Q एक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर होगा, and P and Q have the highest common factor, that is 1. आप HCF के बारे में लोअर क्लास में पढ़े होंगे। इंटीजर तो मैंने आपको बताया, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक रैशनल नंबर है, हमें तभी पता चलेगा जब Q एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। शर्त याद रखो बच्चों, ट्रिक है इसका। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या है ना, जो P यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा एंड P एंड Q का HCF जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1 आ रहा होगा। समझ रहे हो बच्चों? फिर द नंबर, और एक पॉइंट याद रखना है,
the number minus p by q and p by minus q present represent the same rational number. Present the same rational number. So students, the standard form is very simple. As we I have studied, I have said, it is in the simplest form. So the number n for number मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा बोरिंग ना लगे, ठीक है बच्चों. The standard form, the number minus p by q and p by minus q represent द सेम रैशनल नंबर. ये दोनों को आपको याद रखना है. ये जो दोनों नंबर है, अगर इस तरह कोई भी नंबर आया होगा वो उसका रैशनल नंबर सेम ही होगा. वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे ना, रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट किया जाएगा उनको. ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना? समझने की कोशिश करो, समझोगे अच्छे से. ठीक है, तो ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. समझ में आया बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर किसे कहते हैं मैं और एक बार बता देता हूं. A rational number p by q is said to be in standard form if q is a positive integer and p and q have the highest common factor, that is what we say SCF, that is 1. उसका SCF 1 होगा. ठीक है बच्चों, ये था स्टैंडर्ड फॉर्म. So students, we are studying the standard form of rational numbers. As I have said, standard form of rational number is the simplest form, and a standard form, a number is said to be, a rational number is said to be in standard form if q is a positive integer and both p and q have the highest common factor, that is 1. तो बच्चों हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा, तो अभी हम उसका कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. समझो ना? तो एग्जाम्पल कुछ करेंगे, जैसे express 16 by 24 in the simplest form for with its denominator as positive. क्वेश्चन क्या है? 16 बाय माइनस 24. हमें 16 बाय माइनस 24 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है. सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है. किस फॉर्म में लाना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है. और उसका जो डिनोमिनेटर होगा, मैं क्वेश्चन को मैं थोड़ा मतलब छोटा शॉर्ट करके लिखता हूं क्योंकि आपको मतलब बोरिंग नहीं लगेगा और टाइम भी नहीं लगेगा. तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है जिसका डिनोमिनेटर होगा पॉजिटिव. जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा? पॉजिटिव होगा बच्चों. तो करते हैं, चलो करते हैं ये वाला. पहले हमें क्या करना है, कुछ उसका स्टेप है, स्टेप 1 और स्टेप 2. तो क्या है बच्चों? हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है. ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग, दैट इज स्टेप 1, मल्टीप्लाइंग -1 in both the न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. हमें ये क्या है? हमारा न्यूमरेटर है. ये क्या है? हमारा डिनोमिनेटर. तो इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें 1 मल्टीप्लाई कर देना है इसको पॉजिटिव करने के लिए. ठीक है, क्या दिया क्वेश्चन? एक्सप्रेस 16 by 24 as the simplest as the standard form
इन विच द डिनोमिनेटर विल बी पॉजिटिव। तो उसी तरह करना है हमको। 16 में हमें -1 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और -24 में -1। तो डिनोमिनेटर में जो पहले ये वाला करना है आपको, ठीक है। पहले डिनोमिनेटर में जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो न्यूमरेटर में भी होगा। 16 1 16, 24 1 24, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया हमारा -64/24 हो गया। ये था हमारा पहला स्टेप। ये क्या था बच्चों? ये था हमारा पहला स्टेप। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमें क्या फॉलो करना है? आपको इसी स्टेप के हेल्प लेकर करना है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है। स्टेप 2 क्या है? हमें इसका जो 16 आया, 16 एंड 24 का HCF निकालना है। ये है हमारा क्या? स्टेप 2। हमें जिस एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को पहला स्टेप 1 करना है, उसके बाद स्टेप 2 करना है। स्टेप 1 क्या है? बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -1 मल्टीप्लाई कर देना है, जिस कारण की जो इसका डिनोमिनेटर है पॉजिटिव आए, और पॉजिटिव आने के बाद हमारा जो काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 और 24 का HCF क्या होगा बच्चों? आप 5-6 क्लास में पढ़े होंगे। तो इसका HCF क्या होगा? इज 8, क्योंकि ये दोनों से कट रहा है। समझियो ना बच्चों? 8 2 16, समझो ना बच्चों? तो यह था HCF हमारा निकल गया। किसका? जो हमारा 16 और 24 का। तो हमें उस जो HCF निकला उसको इन दोनों नंबर में डिवाइड कर देना है। 16 डिवाइडेड बाय 8 एंड 24 डिवाइडेड बाय 8। 8 2 16, 8 3 24। ये माइनस में है ना? हाँ, तो क्या होगा? 8 1 8, 8 2 16, -2, 8 1 8, 8 3 24, -2/3। तो हमारा निकल गया ना बच्चों? समझ में? पहले स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 क्या करना है? बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें -1 मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद स्टेप 2 में जो नंबर निकलेगा उस नंबर का हमारा HCF निकालेंगे। HCF निकाल के जो नंबर आएगा HCF, उस नंबर को हमें उस नंबर के साथ डिवाइड कर देना है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो -2/3, 16 बाय -24 का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा -2/3। समझ में आया बच्चों कैसे हुआ? और एक बात आपको याद रखना है, जो कि अगर हम जो यहाँ पर m लेना, ये कौन सा प्रॉपर्टी आप बता सकते हो? तो बताओ। हम पढ़े थे रैशनल नंबर का कौन सा प्रॉपर्टी है? ये है हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। ये क्या है हमारा? सेकेंड प्रॉपर्टी। हाँ, सेकेंड प्रॉपर्टी है। तो बच्चों ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या था वो सेकेंड प्रॉपर्टी? और एक बार आपको याद करा देता हूँ कि इफ P by Q is a rational number and M be any integer other than 1 or other than 0, then in that case P by Q is equal to P into M, Q into M। M यहाँ पर, M जो है यहाँ पर वो कॉमन जाएगा, तो वही 0 नहीं होगा। तो लेकिन जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे? तब हम इसमें देखेंगे कि जो m हमारा है वो 1 से 1 ही होगा, 1 से ऊपर नहीं होगा, 1 से नीचे नहीं होगा। ठीक है बच्चों? इक्वल होगा, लेस देन और ग्रेटर देन नहीं होगा। ठीक है? तो वही बात, तो यहाँ पर m हमारा इक्वल नहीं आ रहा है,
तो इसीलिए हम उसको डिवाइड कर दिए। तो उसके लिए हमें सिंपलेस्ट फॉर्म पाने के लिए हम डिवाइड कर दिए तो हमारा मिल गया। समझ में आया ये एग्जाम्पल? तो बच्चों हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे जो कि क्वेश्चन सॉल्व कराने में हमें हेल्प होगा। तो बच्चों और एक एग्जाम्पल देखो, यहां पर बता रहा है एक्सप्रेस -22/-55 -22/-55 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे? हम पहले स्टेप क्या पढ़े थे? पहले स्टेप पढ़े थे कि उसको हम क्या करेंगे? उसको पॉजिटिव में लाएंगे। उसको क्या करेंगे ना? पॉजिटिव में लाएंगे। तो स्टेप 1 है बाय मल्टीप्लाइंग -1 in both numerator and denominator, we get जो कि प्रॉपर्टी 2 को यूज करके निकलेगा कितना? -1। तो यार माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 22/55 निकल गया हमारा पॉजिटिव में। तो स्टेप 1 खत्म हो गया। तो स्टेप 2 हमारा क्या है? इस नंबर से हमें इन जो 22 एंड 55 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या है? 22 और 55 का एचसीएफ 11 कितना है? 11 है ना? 11 2 जा 22 और 11 5 जा 55 पे कट गया हमारा। तो हमारा इससे क्या आया? इससे यानी क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो निकल गया। तो हमें उस नंबर को ही डिवाइड कर देना है जो दिया गया होगा। सो 22/11 और 55/11 दैट इज 11 2 जा 11 5 जा निकल गया बच्चों आप लोगों का, विच इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमारा -22/-55 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म 2/5 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -22/-55। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। समझ में आया बच्चों? ये वाला वही स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या है ना? हमें मल्टीप्लाई कर देना है बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -1 से। उसके बाद स्टेप 2 में उन दोनों नंबर का हमारा स्टेप निकालना है। जो स्टेप आएगा उसको डिवाइड कर देना है उस नंबर से। तो हमारा निकल गया आंसर ये वाला। तो बच्चों और एक एग्जाम्पल है कि फाइंड x such that the rational number in each of the following pairs are equivalent। हमें इससे यहाँ पर x का वैल्यू बाहर निकालना है जहां पर कि जो कि नेशनल नंबर से हमें x का वैल्यू निकालना है, वो भी इक्विवेलेंट। क्या वो? इक्विवेलेंट पेयर में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? बताओ जरा, बताओ कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे? सोचकर बताओ बच्चों, सोचकर बताओ कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? दैट इज प्रॉपर्टी 1। समझियो ना? तो यहां पर प्रॉपर्टी 1 यूज करेंगे। क्या था हमारा प्रॉपर्टी 1? तो मैं आपको हर बार बता रहा हूं, अगर आप प्रॉपर्टी नहीं पढ़े होगे तो ये वाला क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एक रैशनल नंबर को नहीं ला पाओगे। प्रॉपर्टी 1 था इफ P by Q is a rational number and P and Q and R by S। क्या था हमारा प्रॉपर्टी 1? P and Q and
आर एंड, तो पहला प्रॉपर्टी क्या था, इफ p बाई q एंड r बाय s, the rational number p by q and r by s are said to be equivalent if p into s is equal to r into q। ये था हमारा पहला प्रॉपर्टी कि अगर p बाई क्यू और r बाई एस को हम तभी रैशनल नंबर बोल पाएंगे और या इक्विवेलेंट बोल पाएंगे जब p इंटू एस हो इज इक्वल टू r इंटू क्यू होगा। तो वही यहां पर होगा हमारा, तो यहां पर वही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, ये वाला। समझियो ना बच्चों में क्या बोल रहा हूं आप लोगों को। तो वही कि वही p इंटू एस में फॉर्मूला और एक बार लिख देता हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। r इंटू के, यहाँ पर ये है हमारा p, ये हमारा q, ये हमारा r, ये है हमारा s। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x इंटू 6 इज इक्वल टू 5 इंटू कितना, 5 इंटू 12 कितना हुआ, 6x इज इक्वल टू 5 इंटू 12। तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कट गया ना हमारा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। x इज इक्वल टू 10, 5 2 जा 10। कितना आया आंसर बच्चों, x इज इक्वल टू 10। समझ में आया बच्चों, वही फॉर्मूला यूज करना है। इफ p and q and r by s, the rational number p by q and r by s are said to be equivalent। equivalent का बता रहा है ना, in that case if p into s is equal to r into q, so p into s r into q हो गया, हमारा आंसर निकल गया x is equal to 10। तो यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड x बता रहे हैं, तो x is equal to 10। समझ में आया। उसी तरह इसको करेंगे कि 15 इंटू 8 इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स। ठीक है, तो वही 15 इंटू 8 इज इक्वल टू -3x। ठीक है, 3x नहीं लिखने से भी मतलब चलेगा। हम यहाँ पर वही स्टैंडर्ड फॉर्म में इस वाला स्टेप को मैं निटा देता हूँ। तो यहाँ पर x माइनस से यहाँ पर 15/x माइनस 3/8। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा ना, हमारा जो इधर आ जाएगा माइनस नीचे आएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा कितना 15। ये तो सबको आना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये मैथ सब लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो कितना हुआ, 5 8 जा कितना 40, x इज इक्वल टू 40। समझ में आया बच्चों, समझ आ रहा है ना बच्चों। यहाँ पर जो माइनस है वो मल्टीप्लाई हुआ ना, डिवाइड हुआ ना, तो वो माइनस ही आएगा यहाँ पर जो है। तो वही माइनस प्लस माइनस -40, x इज इक्वल टू -40 निकल गया हमारा आंसर। समझ में आया सब आप सभी को बच्चों। वही इफ p and q and r by s, the rational number p by q and r by s are said to be equivalent if p into q is equal to r into s। तो वही हमारे जो फॉर्मूला है वही इसी की हेल्प से सॉल्व हो गया -40। समझ में आया। तो बच्चों और एक क्वेश्चन हम देखेंगे। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में ज्यादातर आता है, और इन क्वेश्चनों में ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार समझ जाओगे ना, आपको
आपको आपके पास जितना चाहे इस तरह के क्वेश्चन आए आप कर पाएंगे, तो अच्छे तरह से समझना। तो बच्चों फिल इन दी ब्लैंक्स बताया गया है। क्या क्वेश्चन है? -3/5 इज इक्वल टू 6 डैश इज इक्वल टू डैश बाय 15। मतलब यहाँ पे दो नंबर मिसिंग है, वही नंबर को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो, पहले हमें इस जो पहला रैशनल नंबर दिया गया है इन दोनों रैशनल नंबर को देखना है। तो उन रैशनल तो समझो बच्चों, तो पहले जो है क्या है ना, यहाँ पर एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, या नहीं डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करने से ना, मतलब ये जो 6 है, 6 से -3 को डिवाइड करने से जो नंबर आएगा उस नंबर को पुट करना है। ठीक है बच्चों, क्या होगा? फर्स्ट we have to get a rational we have to get a rational number. Firstly क्या है ना, हमें एक ऐसा नंबर को देखना है जो कि जिसे हम मल्टीप्लाई करने से उसका प्रोडक्ट 6 आ रहा होगा। ठीक है, firstly we have to see a numbers, choose a number from the given जो दिया गया है न्यूमरेटर का, जिसका प्रोडक्ट whose product is -6, जहाँ प्रोडक्ट 6 है, तो वही नंबर को हमें बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अगर हम 6 डिवाइडेड बाय -3 कर दे तो क्या आएगा उसका आंसर? -2, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। वही -2 को हमें बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि हमारा पहला रैशनल नंबर है। तो -3 इंटू -2 जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा वही डिनोमिनेटर में होगा, -3/5। तो क्या आया आंसर? 3 2 जा 6, सॉरी माइनस प्लस 5 2 जा 10, -10 आया इसका आंसर। तो पहला जो आंसर आया क्या आया? 6/-10, 6/-10। तो आ गया हमारा पहला वाला आ गया। क्या हुआ? -10। क्या आया? -10 आ गया आंसर। समझियो ना बच्चों, हमें इस रैशनल नंबर से सबसे पहले तो हमें इस नंबर से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हेन वी मल्टीप्लाई a number from in the given numerator, the product will be 6। ठीक है, तो वो -2 मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है, तो वही 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से -10 आ रहा है, तो ये हमारा हो गया। उसी तरह ये आया, खत्म हो गया पहला। अभी उसी नंबर से हमें एक ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसका प्रोडक्ट आ रहा होगा क्या? 15। तो 5 से क्या मल्टीप्लाई करने से आएगा 15? आपको पता है सबको, 5 का टेबल सबको याद है। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो उसी 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो आ गया हमारा 3 3 जा 9, -9/15 हो गया हमारा आंसर।
तो 9/-15, ये माइनस में है ना, नहीं नहीं, -3/5, -3/5, हाँ 9/-15, समझ रहे हो ना बच्चों, 9/-15, क्योंकि यहाँ पर 9 पॉजिटिव में, मेरा गलत हो गया, 9 पॉजिटिव में है तो यहाँ पर वही -15। समझ रहे हो ना बच्चों, एक ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसका प्रोडक्ट पॉजिटिव में आएगा, जो कि 9 होगा, तो -3×3=9, माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस प्लस, में इस तरह भी बोल सकते हैं। हम तो कैंसल नहीं हुए पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5×3=15 माइनस, तो आ गया हमारा क्या, ये माइनस में है ना, हाँ सॉरी, माइनस में मेरा दिमाग चकरा गया, ठीक है, चकरा नहीं गया, थोड़ा मतलब मैं कंफ्यूज हो गया, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, यही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर होगा 9। तो हमारा आंसर निकल आया, फिल इन द ब्लैंक्स, कि -3/5 इज इक्वल टू 6/-10 इज इक्वल टू 9/-15। तो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म का इंट्रोडक्शन और उसका एग्जाम्पल, जो कि आप लोगों को करना है। आप करने के बाद उसको अच्छे तरह से एग्जाम में कर पाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने से पहले हमारे YouTube चैनल के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक सभी वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो ये वाला सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आपको जरूर उस वीडियो को देखना है, ठीक है। अब आप जानते होंगे, अगर हम बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो आगे जाकर बड़े बड़े मैथमेटिक्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरह हमको पहले उस वीडियो को देखना है, क्योंकि उस वीडियो से ही हमारा जो प्रॉपर्टीज आया, मैं जो बोला प्रॉपर्टीज 1 2 3, रैशनल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर्स, ये सारे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक बहुत ही अच्छे तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और उस वीडियो को जरूर देखिए। तो बच्चों, आप लोगों को अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल का नाम है स्माइल एजुकेशन पॉइंट, जिसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए हमारा जो ये वीडियो है आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो बच्चों, इसके साथ धन्यवाद।